What is VB? Anyone? In the lower classes, you have studied the examples of high level language. हमने हाई लेवल की एग्जांपल्स पढ़ी हुई है. कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की? Examples of high level language: C, C++, QBasic, Whole, Pascal, Python, Visual Basic. That is VB. Okay. So earlier in the lower classes, you might have studied QBasic, and QBasic was the language in which you just have to write the codes. हम इसमें क्या लिखते थे? Codes बनाते थे. That is program. Program बनाते थे. What is the program? Program means set of instructions. Set of instructions that are given to the computer to solve a particular task. So whatever the task you have to solve, for a related task, you create certain set of instructions, and those instructions will be helpful in solving a particular problem. कोई भी problem है उसको solve करने के लिए हम instructions लिखते हैं. Instructions means we are just writing a program so that we can achieve a specific result. Whatever the results you want to achieve, that will follow certain instructions, and then your output will be there. Right? Then you will obtain your output. So now we are going to start with the VB. Now what's the difference between VB and QBasic? QBasic में बच्चे आप programs बनाते थे, आप codings करते थे, means you are writing certain instructions, and the instructions should be in the sequence. VB में ऐसा कुछ नहीं है. ये नहीं है कि एक sequence follow होगा. You can perform any task anywhere irrespective of the order maintained. अगर हम QBasic की सिंपल बात करें, if I want to just add two numbers, तो हम QBasic में कैसे करते थे? Simply we take two variables and taking the values of two variables A and B like this. Firstly, we need to read, means we need to input. Input output process cycle आपको पता है? IPO पहले input हुआ. These two steps are input. This step is process, and then you give the output using a print statement C, because C is having the result of A and B. This is our output. This forms the input, process and output cycle. तो means ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे print C लगा देते हैं तो पूरी होगी, क्योंकि आपके पास C की ऑपरेशन ही बाद में आ रही है, C की प्रोसेसिंग ही बाद में होगी. मतलब इसका कहने का मतलब है कि जब आप QBasic में काम कर रहे हो, there will be a sequence of instructions that are to be executed in proper order. ये नहीं थर्ड वाली स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, फर्स्ट वाली फोर्थ नंबर पे एग्जीक्यूट होगी. No, it will be in the sequence. But in VB, there is no such format that you have to arrange the instructions in the sequence. No sequence is like that, because VB is a event driven programming language. Event driven programming language means we are not going to follow a particular order of instructions, because in this language we have to follow the events. Whenever some event will occur, our set of instructions will execute it. Now there can be different kind of events. For example, I want कि जब मैं किसी बटन पे क्लिक करूं तो कोई चीज जनरेट हो, कुछ एक्शन परफॉर्म हो. तो क्लिक हियर इज अ इवेंट. आप बोल्ड बटन पे, बी बटन पे क्लिक करते हो MS वर्ड में और MS पावर पॉइंट में, तो क्या बी बटन को प्रेस करने से इटैलिक और अंडरलाइन चलते हैं? दिस इज इवेंट. मींस
On clicking one thing, operations related to that particular task will get operated. आप एक particular program बनाओगे, but the need for not to be followed a particular order. Simply you will frame the events that when you want some action to be generated. Event driven programming means programming is to be done. It will generate some action. It will generate some output depending upon the event you have chosen. आपने क्या event पे क्या coding लगाई है तो उसको उस टाइम पे क्या एक्शन जनरेट होगा. अगर मैं किसी बटन पे क्लिक पे कोडिंग करूं तो क्लिक इज एन इवेंट मींस सिंगल क्लिक. जहां कहीं पे भी मैं सिंगल क्लिक करूंगी तो फिर क्या एक्शन परफॉर्म होगा, क्या एक्शन चलेगा उस टाइम पे. क्लिक इज एन इवेंट. सेम वे डबल क्लिक. एक बटन है ए नेम का और एक बटन है बी नेम का. ए पे मैं क्लिक इवेंट पे कोडिंग कर रही हूँ, बी पे मैं डबल क्लिक पे कोडिंग कर रही हूँ. सिंगल क्लिक पे क्या चीज हो, डबल क्लिक करूं तो फिर क्या चीज हो. मींस दोनों की कोडिंग विल बी डिफरेंट. दोनों की कोडिंग क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी. क्लिक इवेंट पे कुछ और चलेगा, डबल क्लिक इवेंट पे कुछ और चलेगा. ऐसे ही और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रेसिंग एनी की प्रेस इवेंट. अगर आप स्पेस बार की प्रेस कर देते हो तो फिर क्या हो, यू हैव टू चूज अ की. कौन सी की को प्रेस करने पे क्या एक्शन जनरेट हो. अगर आप सिंपली माउस मूव कर रहे हो, आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी लाइव और गूगल. आप कई बार किसी भी इमेज के ऊपर अपना माउस ऐसे मूव करते हो तो इमेज कई बार बड़ी दिखाई देती है. या फिर आप माउस मूव करते हो तो उस इमेज के रिलेटेड आपको कोई टेक्स्ट शो होता है. टेक्स्ट शो होता है, उस इमेज की डिटेल आ रही होगी. जब इमेज आपकी बड़ी हो जाएगी और whatever the thing you want to apply on that particular event, so you can do. वहां पे भी माउस मूव लगाओ. माउस मूव, माउस ओवर, राइट. तो these are the events. आप कोई इवेंट कर रहे हो, कोई आपने परफॉर्म किया, उसके रिलेटेड क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड. अब क्लिक के लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस रहेंगी, डबल के लिए अलग से रहेंगी, माउस मूव के लिए अलग से रहेंगी, बोल्ड बटन की अलग से इंस्ट्रक्शन होगी कि मैंने बी पे क्लिक किया तो फिर मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो जाए. मैंने आई पे क्लिक किया तो उसके लिए मेरा कंटेंट इटैलिक हो जाए. So that will differ from event to event. So that's why VB is just an event-driven programming language where you have to create an interface where the user will interact with our coding. अब उसमें interact कैसे करना है? Basic layout of VB program. VB के अंदर बच्चे forms होते हैं. Now forms we have studied in a cell. What are forms? Forms क्या होते हैं? First feature of forms, this is a user-friendly interface. Interface means the user can interact with it. So user interaction is possible. Access में हम form object क्यों यूज करते थे? To enter the data. तो form आपको क्या-क्या provisions apply कर रहे हैं? It is a user-friendly interface by which the user can interact with the form, with the object, and it can directly enter the details or whatever the data they are asking on the form. Right? अब form कुछ इस तरह से appear होता है. Your name, class, section, like this. So many details are there. आप सबने फॉर्म्स देखे होंगे नेट पे. जब आप कोई भी अकाउंट बनाते हो तो साइन अप फॉर्म फिल करते हो, लॉगिन फॉर्म फिल करते हो, है ना. डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स आर देयर. आप कोई ऑनलाइन एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हो तो उसके लिए भी पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म. तो वो जो सारे फॉर्म्स हैं दैट इज इन इंटरफेस. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस इंटरफेस नाउ इन VB. Okay, we are going to create a design first, and after designing we are going to do the coding.
फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं सिल्ली से आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल दूं, लेट्स से simple form I'm taking for a student where the student has to enter his name and he has to enter his class for registration, and I am saying register, and one button is cancel. Now the things that are appearing on a form, ये आपका क्या है, form. इसके ऊपर जितनी भी ये सब कुछ लगा हुआ है, these are called control. What do we call them? Control, right? ये जो आपको दिखाई दे रहा है S name class, these two are called labels. These headings, caption means जो heading आ रहा है किसी चीज का कंटेंट आ रहा है, that are called labels. Where you are going to enter your data, these are called text box. ये control के names हैं. So there are different kind of controls in VB. We will study later on in detail. So I'm just giving you the rough idea कि हम पढ़ने क्या वाले हैं. What VB is all about, what things we have to cover in it. So before going into the actual detail, आपको एक rough layout पता होना चाहिए इसके बारे में. Clear? Because this is different. जितना भी अभी तक आपने जितने भी सॉफ्टवेयर स्टडी करे हैं, it is different from that. चाहे आपने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है, चाहे आपने कोई सॉफ्टवेयर करे हैं, it is a different thing. Where we are going to create our own interface, and our interface will not only just be designing part, this will also give you some output. Yes, websites बच्चे HTML में होते हैं. This is a software, apps. जैसे apps बनाते हैं तो apps हम इससे बनाते हैं, right? Now see, ये मैंने आपको controls बताए. These are the labels, these are the text boxes, and where we are clicking, हम क्लिक किस पे करेंगे? हमने जब अपना डेटा फिल कर लिया, after filling we will click on either cancel button if I don't want to register, and if I want to confirm my registration I will click on register button. So these two controls are called button. इन दो कंट्रोल्स को क्या बोलेंगे? बटन. ये जो आपने डिजाइन अपना बनाया है, this is complete thing is called front end. ये जो फॉर्म आपने डिजाइन किया है, फ्रंट एंड मींस the thing that you have designed, the thing which the user have designed, तो आपने डिजाइन बनाया. ये जो डिजाइन पार्ट है, that is the front end. Front end means that will be visible to the user. फ्रंट एंड वो चीज है जो हमें दिखाई दे रही है, हम देख रहे हैं और हम इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं? कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं इस फॉर्म के साथ? बाय एंटरिंग द डेटा, बाय फिलिंग द पर्टिकुलर. When we will fill means with the help of mouse we are clicking on the text box and we are just typing our data, so we are actually interacting with it. Okay, we are interacting with this interface. So this is a front end that we are able to see कि हमने क्या क्या फिल कर दिया. आप फॉर्म्स अपने फिल करते हो, वेबसाइट पे ऑनलाइन जाते हो, अकाउंट्स बनाते हो, आप सिंपली सिर्फ इतना फिल करके साइन अप, रजिस्टर, ये चीजें करते हो. बट हैव यू एवर थॉट कि एक्चुअली में वो कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या लगा हुआ है? आपने एंटर किया और एंटर हो गया, कहां गया एंटर हो गया? ठीक है, कभी आपके माइंड में ये चीज आई कि डेटा गया कहां में जब आपने इस डेटा को एंटर करा? ये डेटा सबमिट कैसे हो गया? डेटा को रजिस्टर कैसे कर लिया इन्होंने? तो दिस इज द फ्रंट एंड. तो सेकंड कम्स द बैक एंड. बैक एंड मींस अगर हम डेटा फिल कर रहे हैं, हम सारा इसके साथ काम कर रहे हैं, तो हाउ इट इज वर्किंग, द एक्चुअल वर्किंग इज कॉल्ड द बैक एंड, वेयर कोडिंग इज डन. फ्रंट एंड इज रिलेटेड विद डिजाइनिंग पार्ट, बैक एंड इज रिलेटेड विद कोडिंग पार्ट. कोडिंग क्या करेंगे? हम ये कोडिंग करेंगे जिसमें जो भी मेरा एस नेम में डेटा आया है, आई विल, मैं भी आपको सिर्फ रफ बता रही हूँ कोडिंग करनी कैसे, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन.
आई एम जस्ट टेकिंग जो भी मेरा स्टूडेंट ने किसी भी यूजर ने यहाँ पे डेटा डाला तो मैंने एक वेरिएबल रखते हैं अपने पास, दिस इज द वेरिएबल आई एम टेकिंग। अब इसके अंदर मैं कोई इसकी जो भी वैल्यू एंटर होगी राहुल, ये यहाँ पे ये कोडिंग में मैंने एक वेरिएबल बना लिया कि जब भी कोई यूजर एंटर करेगा उसका नेम इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए, सिमिलरली उसकी क्लास स्टोर हो जाए। एंड इफ इट इज क्लिकिंग ऑन द रजिस्टर बटन तो ये डेटा मेरा कहीं पे जाके सेव हो। एंड इफ द यूजर इज प्रेसिंग द रजिस्टर बटन दैट मींस कि सारा डेटा जो एंटर किया है वो सेव नहीं। तो दिस इज द बैकएंड मीन फॉर वर्किंग ऑफ एनी एप्लीकेशन। आप कोई भी एप्लीकेशन फिल करते हो, कोई भी एप्लीकेशन को यूज करते हो, तो एवरी एप्लीकेशन इज हैविंग वन फ्रंट एंड एंड वन बैक एंड। ये कभी नहीं होगा कि सिर्फ एक डमी एप्लीकेशन बना भी लोगे तो वो सिर्फ फ्रंट एंड पे काम करेगी, डिजाइनिंग का काम करेगी, बैक एंड पे कोडिंग भी उसका कोई काम नहीं हुआ होगा। ओके, आपने अपने मोबाइल फोन में कितनी एप्स डाली होंगी, बताओ कोई ऐप जिसमें आपको फॉर्म फिल करना पड़ा होता है। ओके, साइन इन करने के लिए आपने अपने सेल फोन में एक जूम ऐप डाली हुई है और जूम ऐप को जब आपने रजिस्टर करना था तो पहले आपने साइन अप फॉर्म फिल किया, ठीक है। आपको जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है ये यूजर नेम फिल करो, पासवर्ड फिल करो, जेंडर फिल करो, कंट्री फिल करो, स्टेट फिल करो, ठीक है। वो सब कुछ क्या है, फ्रंट एंड। डेटा एक्चुअली में जा कहाँ पे रहा है, स्टोर कैसे हो रहा है, पास कैसे हो रहा है नेट के ऊपर, पीछे क्या कोडिंग लगी हुई है, दैट इज द ओटीपी आता है, राइट। सो दैट इज आल्सो इन एप्लीकेशन। अब जरूरी नहीं है कि एप्लीकेशन सिर्फ VB में ही बनेगी, दिस इज वन ऑफ द वे, वन ऑफ द लैंग्वेज बाय व्हिच वी कैन क्रिएट दिस। देयर आर मेनी लैंग्वेजेस एडवांसर देन द VB which the actual real life is using for making such kind of application. The overall idea of creation of application is clear to you people. How it is different from HTML or QBasic? Because it only works on events. अब इस केस में इवेंट क्या थे, ये दो बटन, क्लिक बटन, क्लिक करेंगे इसको, अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करें तो डेटा सेव हो रहा है, कैंसिल क्लिक कर रहे हैं तो डेटा सेव नहीं होगा। इवेंट कौन सा बीच में लगा, क्लिक ऑन क्लिक ऑन क्लिक। अब दोनों क्लिक की इवेंट है तो फिर हम रखेंगे ऑन क्लिक रजिस्टर, अगर रजिस्टर पे क्लिक हुआ तो क्या हो, ऑन क्लिक कैंसिल, अगर कैंसिल पे क्लिक हुआ तो फिर क्या एक्शन जनरेट हो। मींस ऑन एवरी बटन देयर विल बी सम एक्शन, there is, these are the events basically, on the events there are some related actions to be performed, right. The basic idea of VB is clear. Now underline from the book. VB is a programming language developed by Microsoft. Freeware. It's a freeware. You can easily download it from the net. In 1991. So who developed the VB? Microsoft. The year of development is 1991. Underline, it helps to create user-friendly applications. Helps to create user-friendly applications with GUI, graphical user interface. Graphical user interface. Why we are saying VB as a graphical user interface? We are actually looking a form. हम फॉर्म को देख रहे हैं, हम इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जो चीज के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, ग्राफिक्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, दैट इज द ग्राफिकल इंटरफेस। क्यूबेसिक में हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, क्या वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है? ओके, द डिफरेंस इज क्लियर। VB में we are actually working with our form, we are working with the controls on the form. फॉर्म के ऊपर जितने कुछ भी चीजें पड़ी हैं, ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? कंट्रोल्स। व्हाट डू वी कॉल देम? कंट्रोल्स। ओके,
So that is why this is the graphical user interface. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Concept is clear. That is why it is called Visual Basic. So underline next line. Visual Basic creates event-driven applications which encourage higher user interaction. अब interaction कैसे करेगा user? Graphical interface. ये graphical interface है. I am interacting with it. How I am interacting? By typing the data here, by clicking on my buttons. So I am interacting basically. So with the help of the controls, I am going to interact. अब controls क्या है? Label, button, text box, radio buttons, check box. जब आप form fill करते हो तो बहुत सारी details आती है. रेडियो बटन क्या होता है? जेंडर फिल करते हो, मेल फीमेल. ये तो नहीं कि उसमें दोनों वैल्यूज फिल हो सकती हैं. रेडियो बटन होते हैं सर्कुलर फॉर्म में. आगे लिखा होगा जेंडर, मेल फीमेल. So this thing is called radio button. So radio button allows you to select only one value at a time. रेडियो बटन में मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट नहीं हो सकती है. Only single value is to be selected. Okay, so this is the feature of radio button. Where only one value at a time is allowed to be selected. ये तो नहीं है कोई पर्सन मेल फीमेल दोनों है. एक ही होगा, जहाँ पे मेल होगा जहाँ फीमेल होगा. तो मीन्स वो रेडियो बटन लगेगा. हॉबीज कई बार होता है. You are having multiple hobbies, so that we will use check box, steer box. चेक बॉक्सेस का फीचर क्या है? मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी सिलेक्टेड एट अ टाइम. जब आपको मल्टीपल चीजें सिलेक्ट करनी है एक टाइम पे तो वी विल यूज चेक बॉक्स देन. सो दीज आर बेसिकली ऑल द कंट्रोल्स वी विल स्टडी. ओके, सो इंटरेक्शन थ्रू आइकन्स, मेन्यूज, पॉइंटर्स, बटन्स एंड डायलॉग बॉक्सेस. इसमें आप ऐड कर लो चाहे टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए, बटन्स हो गए, रेडियो बटन, चेक बॉक्स. सो और आइदर यू कैन सिंपली से कंट्रोल्स. इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल्स. Any doubt? So it is a freeware software. Visual Basic 2010 Express. It is a part of Microsoft Visual Studio. किसका पार्ट है? Microsoft Visual Studio. It is a freeware. Freeware means easily available on the internet. You can freely download it. Occupies less memory space. Contains the features of Visual Basic. Suited for the beginners. It can be downloaded free of cost. The website is given from where you have to download. So the home task for you people is now, you are having 2 holidays, right? Saturday and Sunday. So in these 2 days you have to, systems भी सबके पास घर पे हैं, right? So you have to download the VB from this website. So this is the home task for you people. अभी हमने कुछ नहीं करना, मैंने कोई प्रोग्राम नहीं करवाया. सिंपली आपने अपने सिस्टम्स को रेडी रखना है. मीन्स आपने VB को डाउनलोड करना. सिंपली डाउनलोड इट. द सेटअप यू विल गॉट. आफ्टर दैट यू हैव टू एग्जीक्यूट. यू हैव टू रन दैट एग्जीक्यूटेबल फाइल. इंस्टॉल भी करोगे ना, तो इंस्टॉल कैसे करते हैं? .exe फाइल से. यू हैव टू डाउनलोड द VB फ्रॉम द इंटरनेट एंड देन यू हैव टू इंस्टॉल इन द सिस्टम. तो टिल नेक्स्ट वीक आपके पास VB सिस्टम्स में रेडी होनी चाहिए, राइट? ओके बच्चे.